Hello friends, my name is Poonam Chaube. I am from IT department from the SIRT college. Here we will learn about the programming in Android. So in today's lecture, I will give you the basic knowledge about the Android programming. So here, can we start? So now this session, we will start about the next topic. We have learned about the topics which you are seeing in the slide. So we will see here about the features of the Android and their descriptions. No? So you all are know what about the features. Features means होता है किसी भी चीज का सामने जो भी आपको उसकी क्वालिटीज दिख रही हैं. What are the features? What are the main key points? What are the main qualities जो कि यूजर को अट्रैक्ट करती हैं. ओके, द क्वालिटीज एंड द कंपोनेंट्स विच अट्रैक्ट्स द यूजर ऑफ द कंप्यूटर. दिट इज कॉल्ड द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. फीचर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट चीजों के फीचर्स हो सकते हैं. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स अलग होता है एंड किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स अलग होते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे बेसिकली हियर वी ऑल आर रीडिंग अबाउट द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, सो वी will see about the features and the description of the Android programming. So in the features, we will see the points. First is called the beautiful UI. The UI means the user interface. The interface by which user interacts is called the user interface. जैसे कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल स्क्रीन, उसमें जो वॉलपेपर सेट है वो एक यूजर इंटरफेस है जो कि यूजर को इंटरेक्ट हो रहा है. जब आप मोबाइल को टच कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? You will see first of all the wallpaper of the mobile. This is called the user interface of mobile system of your mobile, है ना. तो beautiful UI means एक beautiful UI user interface provide कराता है Android system. The Android operating system basic screen provides a beautiful and attractive user interface. है ना. एंड्रॉइड में बहुत सारे ऐसे वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे फीचर्स दिखेंगे वॉलपेपर्स में जो आपको अट्रैक्ट करेंगे. क्या तो आप अपने मोबाइल सिस्टम को जब अपडेट करते हैं तो आपको कुछ न्यू वॉलपेपर्स अपडेट हो जाते हैं, है ना. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द यूजर इंटरफेस क्वालिटी ऑफ beautiful user interface quality of Android programming system. Okay, next is called the storage. Storage is the very important part of any system or device or the mobile system. Storage क्या होता है? The storage is basically used for the collection of database or other things. ये for the example image, videos, songs, etc. इन सब के लिए क्या चाहिए है? Storage, storage power. So SQLite is basically the storage example. SQLite is a lightweight relational database is used for the data storage purpose. ये क्या बोलना चाह रहा है कि basically when we will see when we will read about the architecture of the Android programming, then we will see a part. It is called the SQLite. SQLite is a storage database part of Android programming which stores the database and which stores the information like video, audio and etc. Okay, so SQLite क्या होता है? SQLite is a lightweight relational database. It is used for the data storage purpose. जैसा कि आपको डेफिनेशन बता रहा है, सेम इसका एक सिंपल काम है कि ये डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है. चाहे आप वो वीडियो डेटा हो, ऑडियो डेटा हो आपके मोबाइल का, आपकी कोई इमेजेस हो, आपका कोई एक्सेल शीट हो, आपकी कोई भी शीट हो, कोई भी प्रोग्रामिंग, कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो मोबाइल पे, वो SQLite पे स्टोर हो जाएगा इफ योर मोबाइल सपोर्ट्स द एंड्रॉइड डिवाइस. ओके, या इफ you have used your Android
phone. Next is called the messaging, SMS and MMS. Okay, SMS और MMS सबको पता है. Okay, SMS में हम टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, MMS में हम वीडियो कंटेंट सेंड कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द MMS. ओके, तो ये SMS और MMS की जो बेनिफिट है वो भी एंड्रॉइड में फीचर्स में आपको प्रोवाइड होती है ना. उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग. दिस इज द really and true a big features of the Android programming system, because the multitasking is very important for any device or any tablet or any mobile phone. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में 30 बच्चे हैं, और यदि आपके टीचर को उन 30 बच्चों में से कोई एक ऐसा लड़का है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क कंप्लीट करके दे सकता है, वो असाइनमेंट भी कंप्लीट कर देगा, वो उसी दिन टीचर का कोई दिया हुआ काम भी कर देगा, वो बच्चों की अटेंडेंस भी कंपाइल कर देगा. यदि कोई ऐसा स्टूडेंट टीचर को मिलता है सपोज, जो कि बहुत सारे काम एक दिन में ही उसको पूरे करके डेडलाइन पे दे दे, तो दिस कॉल्ड द मल्टीटास्किंग क्वालिटी ऑफ दैट स्टूडेंट. सो मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यदि ऐसा क्वालिटी आप किसी में देखते हो इसी स्टूडेंट में या किसी सिस्टम पे, तो क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, मल्टीटास्किंग को देख के. ऐसा है. तो मल्टीटास्किंग यूज होता है बेसिकली टू डू द वर्क, डिफरेंट वर्क्स इन डिफरेंट टाइम्स. ओके, मल्टीटास्किंग इज यूज्ड टू डू वर्क इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट वर्क. एक ही वर्क को या बहुत सारे वर्क्स को अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करने को बोलते हैं मल्टीटास्किंग. ओके, so user can jump from one task to another and same time various application can run simultaneously. For the definition we can know easily about the multitasking features. क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन योर सिस्टम और इन योर मोबाइल फोन और योर टैबलेट, आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यदि ऑन दैट टाइम आपके पास कोई कॉल आता है, तो आप उसको दैट टाइम बैक जाके रिसीव कर सकते हैं, है ना. इससे आपकी जूम मीटिंग क्लोज नहीं होती है, वो म्यूट हो जाती है. एंड एट द सेम टाइम यदि आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, तो आप मीटिंग के साथ बैक होके उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो. तो ये 3 काम आप एक ही टाइम पे कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑफ द सिस्टम. ये सब किसके अंदर आएगा, मल्टीटास्किंग के अंदर. सेम ऐसे ही आप सिस्टम पे भी कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, वीडियो भी ओपन कर सकते हो, सेम टाइम आप एक्सेल शीट में कोई वर्क भी कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग फीचर्स ऑफ एनी एंड्रॉइड सिस्टम. So on the next slide we will see any other features of the Android programming system. So here we have learned about the basic knowledge of Android programming. So stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Stay safe, stay healthy, and thank you so much.